Hello everyone, welcome back to Kaushal Brai Prep. In today's video, we are going to discuss another topic from development biology, that is organogenesis of chick embryo. And under this, we are going to discuss the development of eye and heart. So we'll start first with the eye development. So if you see the development of eye, it starts during the embryogenesis in early period. So during early embryogenesis, you will see the development of the chick eye, and it develops from the neural ectoderm. So from the forebrain region, the neural ectoderm is there. We have already discussed the brain development in previous video. So if you have not seen that video, please go back and see that video, so you will be understanding what I'm talking about here. So we know that there is neural tube formation. So in that region, from the anterior section, there is brain development, right? So there is forebrain development when there are three vesicle formation. So the first one is the forebrain, prosencephalon. So from the prosencephalon, there is something called diencephalon. So diencephalon is directly involved in the eye development. So basically, chick eye develops from the neural ectoderm, right? But it is not only the ectoderm which is involved. There is complex interaction between the ectoderm, mesoderm, and neural crest cells. So all these cells are involved in the development of the eye itself, right? So the major one is the neuroectoderm, but other layers are also involved. Why? Because there are signaling molecules which we are going to talk about in the later slides, right? Signaling molecules are involved in the overall development. So I developed from the neuroectoderm of the forebrain, okay, and it undergoes various morphogenetic transformation to actually form the functional visual organ. That means the mature eye formation takes time. So there are certain signaling molecules involved that plays key role, and after that there is morphogenetic transformation, certain layers develop, and eventually you will have the eye, right? So we'll discuss step by step what is the formation and how it occurs. So first step is the induction of the eye field. So it occurs during stage 3 or 5, एक्चुअली स्टेज 3 to 5. और अगर आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो 18 to 24 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन दिस आई फील्ड फॉर्मेशन आकर्स, राइट? नाउ आई फील्ड इमर्ज फ्रॉम द एंटीरियर न्यूरल प्लेट रीजन. अगेन जहाँ से हेड फॉर्मेशन होना है, ब्रेन फॉर्मेशन होना है, तो न्यूरल प्लेट का वो रीजन जो एंटीरियर रीजन है वहीं से आई फील्ड ओरिजिनेट होगा, राइट? एंड द रीजन एक्सप्रेस सर्टन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देर इज PAX6, RX1 एंड 6-3. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द PAX6. इनिशिएट आई डेवलपमेंट. सो शुरू करने के लिए आपको ये जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग एट सर्टन पोजिशन, सो डेवलपमेंट विल नॉट बी नॉर्मल, राइट? सो पहले आपको क्या चाहिए? आई फील्ड फॉर्मेशन के लिए यू नीड दीज फैक्टर्स. नाउ द न्यूरल प्लेट वेजिनेट्स. दैट मीन बाहर की तरफ क्या होगा? वेजिनेशन होगा, एंड द वेजिनेशन इज लेटरली, बिकॉज दो आई बन रही है ना. So neural plate will evaginate laterally to form the optic vesicle. So first is the eye field, and then there is optic vesicle formation. And optic vesicle formation marks the first visible sign of the eye development, right? आई फील्ड से तो नहीं पता लगता, लेकिन जब वेसिकल बनना शुरू होता है तो इट बेसिकली इज़ अ विजुअल साइन दैट एट दिस पोजिशन आई इज़ गोइंग टू डेवलप, राइट? सो देर आर सर्टन सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व इन इट. तो मेजर मॉलिक्यूल क्या है आपके पास? फर्स्ट वन इज BMP, सेकेंड वन इज FGF, एंड थर्ड वन इज SHH. सो BMP इज बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, FGF इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड SHH इज सोनिक हेजहॉग. तो BMP regulates the eye field formation. So early eye field formation is under the control of bone morphogenetic protein. And the FGF promotes the neural differentiation, जो neurons बन रहे हैं वहाँ पे. And SHH separates the single eye field into bilateral optic vesicle. क्योंकि single eye field है लेकिन आपको optic vesicle दो साइड चाहिए, because laterally दो आई बनाने हैं, तो उसके लिए SHH इन्वॉल्व है, राइट? तो पहले पॉइंट में क्या हुआ? आई फील्ड का डेवलपमेंट, और वहाँ से ऑप्टिक वेसिकल बना. नाउ लेट्स सी ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन कब है? 33 to 40 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अगर आप स्टेजेस में देख रहे हैं तो 10 से
12th स्टेज जो है डेवलपमेंट में। सो ऑप्टिक वेसिकल एक्सटेंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द डायनसेफेलॉन, अगेन फोरब्रेन से जो है वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है ऑप्टिक वेसिकल, एंड इट इंटरैक्ट्स विद द ओवरलाइंग सर्फेस एक्टोडर्म। तो ये ध्यान में रखेंगे, सर्फेस एक्टोडर्म से इंटरैक्ट करेगा एंड दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड। तो वेसिकल जहाँ बन रहा है उसके बाहर क्या है, एक्टोडर्म है। ये जो एक्टोडर्म है ये लेंस बनाने के लिए टिश्यू बनाएगी, दैट इज लेंस प्लेकोड। ठीक है, तो लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन होती है ऑप्टिक वेसिकल के ओवरलाई जो सरफेस एक्टोडर्म है उससे होगी। देन ऑप्टिक वेसिकल रिमेन अटैच टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक स्टॉक। तो ब्रेन से अटैचमेंट है थ्रू दी ऑप्टिक स्टॉक। तो इस तरह से स्टॉक्स होंगी दोनों तरफ जो इसको ब्रेन से क्या रहेंगे, अटैच रखेंगे। लेटर ऑन ये ही ऑप्टिक स्टॉक है जो क्या बनाएगी, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्यों चाहिए, बेसिकली जो भी विजुअल क्यू है उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिक नर्व को यूज़ किया जाता है। ठीक है, and for the formation of optic vesicle the key molecular regulators are PAC6 and FGF BMP4. PAC6 is essential for optic vesicle patterning एंड दी लेंस इंडक्शन, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल डेवलपमेंट के बाद ही लेंस को इंड्यूस किया जाता है और लेंस की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, सरफेस एक्टोडर्म से हो रही है। देन देर इज FGF एंड BMP4, दीज टू इंड्यूस सरफेस एक्टोडर्म थिकनिंग इनटू द लेंस प्लेकोड। ठीक है, तो पहले सिंगल लेयर होती है सेल की, बाद में ये थिक हो जाती है और वो प्लेकोड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये है। अब इसको विजुअली अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, दिस इज़ द एक्टोडर्म ब्लू से जो मार्क किया हुआ है, एंड दिस इज़ द ऑप्टिकल वेसिकल। तो ये इस तरह से वेसिकल की फॉर्मेशन हुई है। एंड ये जो लेंस पिट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो लेंस जो प्लेकोड है वहाँ पे मल्टीपल सेल्स आपके लोग थिकनिंग हो गई है सेल की, जिसकी वजह से क्या बना है, प्लेकोड बन गया है। फर्दर डेवलपमेंट में क्या होगा, ये वेसिकल जो है ये आप ये सोचिए देयर इज़ मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, और ये वेसिकल जो है अब कन्वर्ट होने वाला है ऑप्टिक कप में। वो कैसे होगा, दैट विल डिस्कस। और ऑप्टिक स्टॉक फर्दर जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो बेसिकली ब्रेन की तरफ जाएगी। ठीक है, और सरफेस एक्टोडर्म जो है वहाँ से, जहाँ से हमने लेंस प्लेकोड बनाया था, वहाँ से पहले लेंस स्पोर बनेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा और ये पिंच ऑफ हो जाएगा फिर, एंड इट विल फॉर्म लेंस वेसिकल, जिससे इवेंचुअली लेंस बनने वाला है। ठीक है, तो हमने शुरू कहाँ से किया, आई फील्ड से, उसके बाद ऑप्टिक वेसिकल बना, यहाँ तक हमें पता है। नाउ विल टॉक अबाउट ऑप्टिक कप डेवलपमेंट। सो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑप्टिक कप का बनना और लेंस वेसिकल का बनना भी। ये 50 to 60 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। सो व्हाट हैपन्स, दी ऑप्टिक वेसिकल इनवेजिनेट्स। ये ध्यान रखिएगा, जो टर्मिनोलॉजी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्टिक वेसिकल जो है अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इट इनवेजिनेट्स and it will form a double layered optic cup. तो you can see very clearly the optic cup is double layer. ये दो तरह की layers दिखाई दे रही हैं। ठीक है, the inner layer becomes the neural retina. ठीक है, and the outer layer forms the retinal pigment epithelium. तो दो layers बनाएंगे optic cup में, the inner layer is going to be neural retina and outer layer is going to be the neural the outer layer is going to be the retinal pigmental epithelium cell. ठीक है, epithelium की layer होगी outer वाली। And the surface ectoderm is thickening and invaginate to form lens vesicle which eventually detaches and move inside the optic cup. तो lens vesicle जो है ये detach होगा और inside the optic cup इस वाले region में जो है further आने वाला है। इस पूरे process में the signaling involved is SHH, PAC6, SOX2 and retinoic acid. SHH जो है it controls the optic cup इन्वेजिनेशन, जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। PAC6 एंड SOX2 इज़ असेंशियल फॉर लेंस वेसिकल फॉर्मेशन। दीज सिग्नलिंग क्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट बायोलॉजी में जितना भी आप पढ़ेंगे बच्चे, सिग्नलिंग क्यूज़ ही हैं जो सारी की सारी डेवलपमेंट बायोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन दी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इन पे थोड़ा आपने फोकस करना है। सो PAC6 एंड SOX2 आर असेंशियल फॉर लेंस वेसिकल फॉर्मेशन। रेटिनोइक एसिड रेगुलेट्स दी रेटिना डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल रेटिना और रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम बनना है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके कंट्रोल में। सो वी हैव ऑप्टिक कप एंड लेंस वेसिकल। नेक्स्ट इज जो रेटिना आपका है इसको डिफरेंशिएट करवाना है। सो देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ रेटिना एंड लेंस, तो इनको फर्दर डेवलप करवा रहे हैं एंड डे 3 to 4 में ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेंस वेसिकल हमने बना दिया था। नाउ लेंस वेसिकल इज गोइंग टू डिफरेंशिएट। इट विल डिफरेंशिएट इनटू 2 थिंग्स। नंबर 1 इज लेंस फाइबर एंड नंबर 2 इज लेंस एपिथेलियम। लेंस फाइबर क्या है,
प्राइमरी और सेकेंडरी फाइबर्स इससे बनने वाले हैं, ठीक है। एंड दीज फाइबर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू लेंस ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, आइस में जो लेंस है वहाँ से लाइट जो है वो पास कर सकती है, तो वो लेंस फाइबर की वजह से है। लेंस एपिथेलियम जो है इट बेसिकली मेंटेन्स द लेंस ग्रोथ, तो ये दो चीज़ें यहाँ से बनने वाली हैं, ठीक है। देन इफ़ यू सी रेटिना, द रेटिना डिफ्रेंशिएट्स इनटू मल्टीपल लेयर्स। रेटिना की बहुत सारी लेयर्स बनने वाली हैं, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट लेयर हैं। एक है आपकी फोटो रिसेप्टर्स की लेयर, जिसमें रॉड और कोन होंगे। देन देर इज़ बाइपोलर सेल्स एंड द फाइनल वन इज़ द गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है। तो ये 3 जो लेयर्स हैं रेटिना की वो बनने वाली हैं। एंड देन अनदर थिंग विच फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस डिफ्रेंशिएशन इज कोरॉइड फिशर फॉर्मेशन। तो कोरॉइड फिशर क्या है? देर इज़ अ ग्रूव विच विल अपेयर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ऑप्टिक कप। तो ऑप्टिक कप अगर इस तरह से है तो उसकी वेंट्रल साइड पे ग्रूव जो है वो बनेगा, और ये जो ग्रूव है इट विल अलाउ ब्लड वेसल टू एंटर इनटू द आई। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए ना डेवलपमेंट के टाइम पे, तो वो सारा इसी से आने वाला है। And for this overall development, the key signaling molecules are Notch and VEGF. Notch signaling जो है it regulates neural retina layer formation। तो जो ये 3 layers हमने यहाँ पढ़ी हैं, photoreceptor, bipolar and ganglionic cells, इन तीनों layers के बनने के लिए Notch signaling बहुत इंपॉर्टेंट है। And VEGF, vascular endothelial growth factor, this will guide the blood vessel formation, जो choroid further बाद में जो आपका है बनने वाला है उससे, ठीक है। तो अप टू हेयर रेटिना का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। नेक्स्ट इज दी कॉर्निया एंड एंटीरियर सेगमेंट फॉर्मेशन, जो कि डे 6 और 7 पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉर्निया जो है ये कहाँ से डेवलप करता है? कॉर्निया डेवलप्स फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म, जिससे लेंस बना है, एंड सम मीजनकाइम सेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, राइट। तो सर्फेस एक्टोडर्म और मीजनकाइम से कॉर्निया बनेगा। देन देर इज समथिंग कॉल्ड आइरिस एंड सिलरी बॉडी। अभी मैं आपको आई का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसमें ये सब होगा, वहाँ से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सो आइरिस जो है दिस इज़ बेसिकली द कलर्ड पोर्शन, जो आपकी आई का कलर होता है ना वो इसी की वजह से होता है, आइरिस की वजह से, ठीक है। सिलरी बॉडी जो है इट ये दो चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक कप। तो ऑप्टिक कप जो है उसका जो एंटीरियर फ्रंट वाला पोर्शन होगा, वहाँ से आपको क्या मिलेगा? आइरिस और सिलरी बॉडी। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी डे 6 to 7 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देन देर इज एक्वस ह्यूमर which is going to fill the anterior chamber of the eye, and the neural crest cell finally going to migrate to contribute to the cornea and the iris development, ठीक है। तो बाय डे 6 and 7 पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉर्निया अच्छे से बन जाएगा, एंटीरियर सेगमेंट जो है वो पूरा बन चुका होगा, आइरिस, सिलरी बॉडी ये सब फॉर्म हो चुका होगा, ठीक है। एंड फाइनली देर इज मैचुरेशन ऑफ द आई डे 10 से 12, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में, इसमें एम्ब्रियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो मैच्योरेशन के टाइम पे क्या होगा? रेटिना जो है इट बिकम्स फुली स्ट्रैटिफाइड विद डिस्टिंक्ट लेयर। तीनों लेयर अलग अलग हो जाएंगी आपकी, फोटो रिसेप्टर की लेयर अलग हो जाएगी, बाइपोलर सेल्स की लेयर अलग हो जाएगी, और गैंग्लियन सेल्स की लेयर बिल्कुल डिफाइन बन चुकी होंगी। फोटो रिसेप्टर्स में रॉड और कोन्स हैं जो डिफ्रेंशिएट हो चुके होंगे, और जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो आप कह लीजिए अच्छे से बन चुकी होगी, कंप्लीट माइलिनेशन वहाँ पे हो जाएगी, और विजुअल सिग्नल जो है ट्रांसमिशन वो स्टार्ट कर देगी। एंड द प्यूपिल एंड आइरिस मसल डेवलप टू कंट्रोल द लाइट एंट्री। नाउ व्हाट इज़ प्यूपिल? आइरिस जैसे होता है तो उसके बीच में एक स्पॉट दिखाई देता है हमें ब्लैक कलर का, एंड दिस स्पॉट बेसिकली एक वो रीजन है जहाँ से लाइट एंटर कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द प्यूपिल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ द लाइट इन टू द आई। So by all this the mature eye is formed. So if we just conclude everything, we have eye field first, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल था, देन देर इज़ ऑप्टिक कप, फिर इसके बाद आपके पास रेटिना, कॉर्निया और जो एंटीरियर पोर्शन है वो सारा डेवलपमेंट हो गया। और कौन कौन से इसमें सिग्नलिंग इन्वॉल्व है दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, राइट। सो इफ़ वी जस्ट कंक्लूड इट, द की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व आर FGF, सोनिक हेजहॉग, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, विंड सिग्नलिंग, PAX6, रेटिनोइक एसिड, नॉच सिग्नलिंग, ये सारे आपके इवेंट्स, मतलब आपके डिफरेंट इवेंट्स में इन्वॉल्व सिग्नलिंग है। तो अगर हम ब्रीफली देखें, दी FGF विच आर इन्वॉल्व आर FGF8 एंड FGF9, ठीक है। ऑप्टिक वेसिकल में एक्सप्रेस करते हैं FGF, सरफेस एक्टोडर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं FGF, ठीक है। FGF का काम क्या है? इट इंड्यूस लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसके लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म इफ यू वांट टू फॉर्म द लेंस प्लेकोड, सो यू नीड FGF विच विल कम फ्रॉम द underlying cells, right?
एंड इट इज़ असेंशियल फॉर रेटिनल प्रोजेनिटर सेल सर्वाइवल। तो जिन सेल्स ने रेटिना बनाना है उनके प्रोजेनिटर जो बेसिकली सेल्स हैं जो इवेंचुअली रेटिना बनाने वाले हैं उसके सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन देर इज FGF1 एंड FGF2, दे विल प्रमोट द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरल रेटिना एंड दे ऑल्सो स्टिमुलेट द लेंस फाइबर इलोंगेशन, राइट। देन सोनिक हेजहॉग पाथवे, अब ये याद रखिएगा ये जो मैं सिग्नलिंग आपको बता रही हूँ ये जर्नलाइज्ड है, जो स्पेसिफिक है वो मैं पीछे ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। SHH की बात करेंगे तो दे आर एक्सप्रेस्ड इन दी नोटोकॉर्ड एंड प्री कॉर्डल प्लेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड SHH का काम क्या है, देखिए आपकी ऑप्टिक फील्ड सिंगल थी उसको स्प्लिट करना है ताकि दो लेटरल आई बने, तो इट स्प्लिट द सिंगल ऑप्टिक फील्ड इनटू टू ऑप्टिक वेसिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लीड इनटू फॉर्मेशन ऑफ बायलेटरल आई, राइट। अगर म्यूटेशन हो जाए SHH में, सोनिक हेजहॉग की म्यूटेशन हो जाए तो ये स्प्लिट नहीं होगा तो सिंगल आई फॉर्मेशन होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, साइक्लोपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोपिया इज सिंगल आई फॉर्मेशन एंड इट बेसिकली आकर्स बिकॉज SHH जो है वो म्यूटेट हो चुका है, ठीक है। देन देर इज बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जिसमें BMP4 and 7 आर इन्वॉल्व एंड दे आर सिक्रीटेड बाय surface ectodome itself and optic vesicle. They induce lens placoid formation and they support retina development and they regulate dorsal ventral patterning of the retina. तो dorsal और ventral जो patterning है उसमें involve है BMP. Then there is Wnt signaling जिसमें Wnt 2b and Wnt 3a है. They are important for optic vesicle का patterning जब होता है. They promote retinal differentiation, control eye field boundary, this is important. अगर Wnt inhibitor डाल दिया जाए, what is Wnt inhibitor, डिकॉफ या फ्रिस्बी, ठीक है, तो DKK1 या FRZB ये जो इनहिबिटर्स अगर इनको इंसर्ट किया जाए तो ये विंड सिग्नलिंग को बंद कर देंगे, तो होगा क्या, तो इंटीरियर एक्टोडर्म में जो विंड सिग्नलिंग है वो नहीं होगी एंड इट अलाउज बेसिकली लेंस फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो लेंस फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको, विंड सिग्नलिंग को बंद करना है, यहाँ से ये समझ आ रहा है। आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू यू दैट यू डू नॉट नीड विंड सिग्नलिंग इन दी एंटीरियर एक्टोडर्म। अगर वो वहाँ पे होगा तो उससे लेंस नहीं बन सकता। ये देखो ना, ऐसे एक्टोडर्म था ओवरलाइन, इस एक्टोडर्म ने लेंस बनाया और बाकी ने नहीं बनाया, तो इसमें कुछ अलग हुआ होगा, तो क्या हुआ, वहाँ विंड को इनहिबिट कर दिया गया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। And lastly, there is PAC6 retinoic acid and notch signaling. So PAC6 is expressed in the early eye fluid, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था. This is essential for optic vesicle formation. This is important. Lens induction में PAC6 बहुत important है. अगर PAC6 ना हो तो there is absence of eye formation ही नहीं होगा. इसको आप क्या बोलते हो, एनोफ्थेल्मिया, ठीक है। Anophthalmia is a condition in which there is no eye formation and it occurs due to absence of the or loss of the PAC6, which is the master eye gene itself, right? Then there is retinoic acid signaling. Retinoic acid is derived from vitamin A, which is retinol itself, and it controls the differentiation of the photoreceptor cells, ठीक है जी, उसके लिए important है. Anterior posterior patterning of the retina के लिए भी important है, ठीक है. Then lastly there is notch signaling. जो notch है उसमें notch और delta signaling जो है वो बेसिकली आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी की बेसिक सिग्नलिंग में पढ़ा होगा. ये जो है दिस इज इन्वॉल्व इन दी मेंटेनेंस ऑफ रेटिनल प्रोजेनिटर सेल एंड इनहिबिट प्री मैच्योर न्यूरोनल डिफरेंशिएशन. तो जब तक मैच्योर आई बन ना जाए तब तक न्यूरॉन्स का डिफरेंशिएशन नहीं होने देती है, ठीक है. तो प्री मैच्योरल आप कह लीजिए जो न्यूरल डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा अगर नॉच सिग्नलिंग बंद हो जाए. एंड अगेन दिस सिग्नलिंग इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिक कप मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है जी. So this is the major signaling which is involved in the eye development. Now if you see this is the structure of the chick eye. तो यहाँ पे दिस इज़ नॉर्मल, जैसे ह्यूमन आई अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ें अलग हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ एंटीरियर चैम्बर, सो दिस इज़ द कॉर्निया, पीछे आपका लेंस होगा, ठीक है, ये लेंस है. लेंस और कॉर्निया के बीच में एंटीरियर चैम्बर है जहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर होने वाला है, ठीक है. देन देर इज़ दिस इज़ आइरिस, ये बीच में जो रीजन है यहाँ प्यूपल होगा, ठीक है जी. यहाँ पे मसल्स आपको थोड़ा सा दिखा रखे हैं, फाइब्रेज ओनलैरिस यहाँ दिखा रखी है. दिस इज़ दी विट्रस चेम्बर जहाँ पे विट्रस ट्यूमर होगा. ये रेटिना है, ठीक है, दिस पोर्शन इज़ रेटिना. एंड देन दिस इज़ स्क्लेरा, जो वाइट पोर्शन आगे तक मूव करेगा. स्क्लेरा आगे देखेंगे तो ये कॉर्निया की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी. एंड दिस इज़ कॉर्डिया या फिर इसको कोरोइड भी कहते हैं, जो आपकी वैस्कुलर लेयर है. यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, दिस वन, दिस थिंग इज कॉल्ड पैक्टन ऑक्यूलाई. व्हाट इज़ दिस? तो अगर हम सारे स्ट्रक्चर को देखें तो ओवरऑल आई जो है उसमें
3 मेजर लेयर्स होती हैं। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ बताई हैं, अगर इसको हम कंसाइज वे में पढ़े तो देयर आर 3 लेयर्स, आउटर, मिडल एंड इनर। सो इफ़ यू सी द आउटर लेयर ऑफ आई, दिस इज फाइब्रस इन नेचर, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो आउटर लेयर सिर्फ किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। सो यू हैव कॉर्निया इन द आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, जो शुरू में आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, दिस इज कॉर्निया, राइट। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट कर्व स्ट्रक्चर, और इसका काम क्या है? इट अलाउज द लाइट एंट्री एंड रिफ्रैक्ट लाइट। तो लाइट एंट्री को अलाउ करता है, तभी तो ट्रांसपेरेंट है। सेकेंड इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आपका टफ है। द वाइट आउटर कवरिंग जो आपको दिखाई देती है, दैट इज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए प्रेजेंट है, दैट इज स्क्लेरा। ये भी आउटर लेयर का पार्ट है, फाइब्रसी होती है। देन देर इज स्क्लेरल ऑस्टिकल्स विच इज़ यूनिक टू बर्ड। अब ये स्क्लेरल ऑस्टिकल्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। दीज आर दी स्ट्रक्चर विच आर यूनिक टू बर्ड, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड दीज बोनी प्लेट सपोर्ट द आई बॉल। तो ये बर्ड के आई में यूनिक स्ट्रक्चर है एक, स्क्लेरल ऑसिकल्स, ठीक है। ये बोनी प्लेट्स हैं जो आई को सपोर्ट करते हैं। मिडल लेयर की बात करें, दिस इज दी वैस्कुलर लेयर, यूविया भी इसको आप कहते हो। तो दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कोरॉइड, आयरिस एंड सिलरी बॉडी। आयरिस और सिलरी बॉडी आपको फ्रंट में दिखेगी, कोरॉइड पीछे होती है। कोरॉइड इज हाईली वेस्कुलाइज एंड इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी रेटिना। तो यहीं से हमने फिशर फॉर्मेशन पढ़ा था ना, कोरॉइड फिशर। तो बेसिकली ये वही लेयर है जहाँ पे बहुत सारी वैस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है। देन देर इज आयरिस। आयरिस जो है दैट कंट्रोल प्यूपिल साइज एंड रेगुलेट आई एंट्री। और ये आपका आयरिस जो है ये कैसा होता है? ये बेसिकली कलर्ड रीजन है, ठीक है। कलर जो आई का है इसकी वजह से दिखाई देता है। सिलरी बॉडी जो है इट कंट्रोल्स लेंस शेप बाय फॉर फोकसिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं साथ में? सिलरी मसल्स होती है जो कंट्रैक्ट या रिलैक्स करके लेंस की शेप को चेंज कर सकती हैं। तो बेसिकली आई अकोमोडेशन जो है वो किसके कंट्रोल में होती है? सिलरी बॉडी के कंट्रोल में, ठीक है। देन देर इज इनर लेयर ऑफ द आई जिसमें रेटिना और न्यूरल लेयर आती है। दे डिटेक्ट लाइट एंड दे ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है। तो रेटिना जो है इट कंपोज्ड ऑफ फोटो रिसेप्टर जिसमें रॉड और कॉन सेल्स आते हैं। देयर आर बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल जो है इसके एक्सॉन से बेसिकली आपका क्या बनने वाला है? जो सिग्नल ट्रांसमिट होना है ना, ऑप्टिक नर्व, वो यहीं से बनेगी, गैंग्लियनिक सेल से, ठीक है, नर्व सेल से बेसिकली, इनके एक्सॉन से बनेगी। देन देर इज समथिंग कॉल्ड फोविया। फोविया इज द एरिया ऑफ हाईएस्ट कोन डेंसिटी गिविंग शार्प विजन। फोविया क्या होता है? जहाँ पे रेटिना है वहाँ पे पीछे जैसे एक डिप्रेशन सी होती है और यहाँ पे सिर्फ कोन्स होते हैं। तो हाईएस्ट कोन्स होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विजुअल एक्यूटी यहीं पे होती है। इसको फोविया सेंट्रालिस भी कहते हैं, ठीक है। देन देर इज दिस थिंग पैक्टन ऑक्यूलाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज पैक्टन ऑक्यूलाई। सो दिस इज यूनिक टू बर्ड्स एंड दिस पैक्टन ऑक्यूलाई, दिस इज अ वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड रिड्यूसेस द नीड ऑफ ब्लड सप्लाई इन द रेटिना। तो बेसिकली विजुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। बर्ड्स ना जो उनकी विजुअल क्लैरिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए देर इज दिस यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैक्टन ऑक्यूलाई एंड इट इज़ यूनिक टू बर्ड्स। एक पैक्टन ऑक्यूलाई और दिस थिंग ओवर हेयर स्क्लेरल ऑसिकल्स, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड द बेसिकली आई स्ट्रक्चर। एंड लास्टली अगर आप देखेंगे लेंस का काम, लेंस कैसा होता है? बाइकन्वेक्स है, चिक के केस में फ्लेक्सिबल है। एकोमोडेशन क्या होता है? फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, कि अगर पास में देख रहे हैं, दूर में देख रहे हैं तो फोकस एकदम से कर पाए, तो वो जो बर्ड है वो बहुत अच्छे से कर लेती है। एक्वस ह्यूमर जो है ये बेसिकली फ्लूइड है आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में, जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आई बॉल में जो प्रेशर है बेसिकली, क्योंकि फ्लूइड जो है वो प्रेशर मेंटेनेंस के लिए है। वैसे ही आपका विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड नहीं होता, दिस इज जेल लाइक फ्लूइड, ओके। एंड ये आई बॉल को फिल करता है, ये आई की शेप को मेंटेन करता है। तो एक्वस ह्यूमर इज़ फॉर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेनेंस एंड विट्रस ह्यूमर इज़ फॉर आई शेप, और इन दोनों के थ्रू आपके लिए नरिशमेंट भी थोड़ी सी मिलती है आई को। एंड लास्टली ऑप्टिक नर्व की बात करें विच इज़ क्रेनियल नर्व सेकेंड, दिस ट्रांसमिट द विजुअल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, राइट। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ द आई इन चिक। तो आपके पास आई फील्ड है, देन यू हैव ऑप्टिक वेसिकल, यू हैव ऑप्टिक कप, इसके बाद आप रेटिना पढ़ते हैं, कॉर्निया पढ़ते हैं, एंटीरियर चेंबर। देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, जिसमें आपने जो पैक्टन ऑक्यूलाई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज़ इट फॉर द आई डेवलपमेंट। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर, आपको समझ आया हो। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर लेट्स मूव टू द हार्ट डेवलपमेंट. So if we see about the heart development,
सो चिक के केस में भी हार्ट डेवलपमेंट अगर हम पढ़ते हैं, वैसे जैसे आई में आई फील्ड बनता है, वैसे हार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हार्ट फील्ड. तो हार्ट फील्ड फॉर्मेशन होता है. द व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट चिक इज द हार्ट इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप, राइट. तो पहला फंक्शनल ऑर्गन जो है दैट इज़ हार्ट. वैसे अगर आप देखेंगे एस्कुलेशन के बाद न्यूरुलेशन होती है, सो देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बट फंक्शनल जो पहला ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट. हार्ट पंप करना शुरू करता है तभी फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस को सपोर्ट मिलता है, ठीक है. और बनता कहाँ से, तो मीजोडर्म से. मीजोडर्म में भी आगे आप डिस्टिंक्शन देखेंगे, तो स्प्लांचनिक मीजोडर्म जो है वहाँ से हार्ट की फॉर्मेशन होती है. तो दिस इज़ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ए बी सी अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर्स को, तो ये डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन चिक बता रहा है, ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट सेक्शन देखिए ए, इसमें आपको सिर्फ वेंट्रल अओर्टा, वेंट्रिकुलर एरिया, एट्रिया ये सब दिख रहा है, तो ये ट्यूब जैसी दिख रही है. तो इसका मतलब है जब चिक में हार्ट की डेवलपमेंट होती है तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद द ट्यूब. बट वो ट्यूब बनती कैसे है और कैसे आगे फॉलोअप करती है, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर है, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द हार्ट फील्ड इटसेल्फ. तो इफ़ यू सी द की स्टेजेस इन चिक हार्ट डेवलपमेंट, तो पहले गैस्ट्रुलेशन होता है, उसी के टाइम पे देर आर सम विच आर सेल्स विच आर गोइंग टू माइग्रेट. तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन अगर आप 18 to 20 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, मीजोडर्मल सेल्स विल माइग्रेट टू फॉर्म द कार्डियक प्रोजेनिटर सेल. तभी कहते हैं हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, इजंट इट. तो वो मीजोडर्मल सेल जो हैं दे माइग्रेट एंड फॉर्म द कार्डियक प्रोजेनिटर सेल. देन देयर इज हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन, जो मैं आपको यहाँ पे ए फॉर्म में दिखा रही हूँ. ये क्या है, ये ट्यूब ही है ना, एक तरह की ट्यूब दिख रही है. तो ये ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है बाय 30 to 38 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो होता क्या है बेसिकली, देर इज़ फ्यूजन ऑफ द बायलेटरल हार्ट फील्ड. तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हार्ट फील्ड है वो कैसी है, बायलेटरल है, उसका फ्यूजन होता है और इससे प्रिमिटिव एक हार्ट ट्यूब बन जाती है. देन देर इज़ कार्डियक लूपिंग. जो हार्ट ट्यूब बनी है वो लूप होगा, उसमें एस शेप का लूप बेसिकली होता है, जो 48 to 55 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. एंड द हार्ट ट्यूब बेसिकली बेंड्स टू एस्टैब्लिश लेफ्ट राइट एसिमेट्री, ठीक है. तो वो लूप बनेगा, देर इज़ एसिमेट्री. एंड देन देर इज़ चैम्बर स्पेसिफिकेशन, वेंट्रिकल, एट्रिया, ये सब बनेगा. इनफ्लो आउटफ्लो ट्रैक डेवलप होंगे. एंड फाइनली देर इज़ मैचुरेशन, जो डे 7 ऑनवर्ड्स हो जाएगी, जिसमें आपके वैल्व फॉर्मेशन, ट्रैबिकुलेशन ये सब हो जाएगा, ठीक है. तो एक एक करके हम इन स्टेजेस को देखने वाले हैं. तो फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्डियक प्रोजेनिटर सेल. एक्चुअली वो सेल जिन्होंने क्या बनाना है, आगे हार्ट बनाना है, ठीक है. तो हार्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लांचनिक मीजोडर्म, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है. और स्प्लांचनिक मीजोडर्म इज अ पार्ट ऑफ लेटरल प्लेट मीजोडर्म बेसिकली, ठीक है. वहाँ से बनता है. ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन हार्ट जो है बनना शुरू होगा. वाई, क्योंकि कुछ सेल जो है माइग्रेट करना शुरू कर जाएंगे. नाउ द कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स माइग्रेट, जो कि ये हैं स्प्लांचनिक मीजोडर्म के कुछ सेल्स हैं, दे माइग्रेट टू फॉर्म बायलेटरल हार्ट फील्ड. तो ध्यान रखिएगा बायलेटरल हार्ट फील्ड बनती है ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन. तो अगर ये मिड लाइन है, क्योंकि आप प्रिमिटिव स्ट्रीक का बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है और इस तरह से नोड बनता है. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेसिक डेवलपमेंट के टाइम पे. तो जो ये सेल्स हैं वो इस तरह से माइग्रेट कर रहे हैं. तो माइग्रेशन दोनों साइड से चल रही है, तभी हम क्या कह रहे हैं, बायलेटरल हार्ट फील्ड बन रही है मिड लाइन के अराउंड. लेकिन ये जो बायलेटरल हार्ट फीड है, इससे कॉमन क्या बनना है, फ्यूजन के बाद एक ट्यूब बनी, जो नेक्स्ट स्टेप है. सो फर्स्ट क्या है, हार्ट फॉर्मेशन के टाइम पे स्प्लांचनिक मीजोडर्म से कुछ कार्डियक प्रोजेनिटर सेल माइग्रेट करेंगे, दे विल फॉर्म द बायलेटरल हार्ट फीड, राइट. इस टाइम पे जो सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व हैं, तो मेजर मॉलिक्यूल हैं आपके बीएमपी, विंट एंड एफजीएफ. दीज 3 रेगुलेट्स द इंडक्शन ऑफ द कार्डियक मीजोडर्म, ताकि वो ये हार्ट फील्ड को बनाए, ठीक है. एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NKX 2.5 एंड GATA4 इज स्पेसिफिक फॉर कार्डियक सेल फेट. तो जिन सेल ने कार्डियक मान लीजिए सेल्स बनना है फर्दर मीजोडर्म के, वो सेल जो कार्डियक प्रोजेनिटर सेल बनने वाले हैं, उन सेल में ये जीन्स का एक्सप्रेशन तो होना ही होना है, ठीक है. और ये जो NKX 2.5 है, दिस इज़ अ कार्डियक मास्टर जीन. इसको चेक भी किया जाता है, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में बहुत बार इस जीन को पढ़ेंगे, ठीक है. एक्सक्यूज मी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द bilateral heart field. Now second step is the formation of the heart tube. So this occurs by 24 to 36 hours post fertilization. Bilateral heart feed जो है it approaches each other. इसका मतलब मिड लाइन पे वो फ्यूज होना शुरू हो जाएगा and it will fuse to form a single linear heart tube. तो सिंगल हार्ट ट्यूब बनेगी, जिसको आप प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब भी कहते हो, ठीक है. तो हार्ट ट्यूब बन गई. देन द मायोकार्डियम विच इज़ द मसल लेयर
endocardium, which is the inner layer, and cardiac jelly, which is the extracellular matrix layer. They differentiate from the mesodermal cell. तो mesodermal cell से तीन तरह की layers basically differentiate हो रही हैं. The muscle layer, which is myocardium, inner lining is endocardium, and the cardiac jelly, which is extracellular matrix layer. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब, जो ये हार्ट ट्यूब बनी है इसमें 5 रीजन होंगे. द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब विल कंसिस्ट ऑफ 5 रीजन्स. फर्स्ट वन इज द साइनस विनोसस, देन देर इज प्रिमिटिव एट्रियम जो फर्दर एट्रियम बनाने वाला है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, देर इज वन थिंग कॉल्ड बल्बस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस. ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो जो साइनस विनोसस है, व्हाट इज दिस? साइनस विनोसस बेसिकली इज द रीजन विच रिसीव वीनस ब्लड. तो वीन्स जो है सारा ब्लड यहाँ पे लेके आएंगी. ठीक है. प्रिमिटिव एट्रियम से तो आपका लेफ्ट और राइट एट्रियम बनेगा फर्दर मैच्योर होने के बाद. प्रिमिटिव वेंट्रिकल से आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ पार्ट बनने वाला है. ठीक है. जो बल्बस कॉर्डिस है इट विल फॉर्म द राइट वेंट्रिकल का पार्ट एंड आउटफ्लो ट्रैक. तो ये ध्यान रखेंगे. ठीक है. हार्ट से जो ब्लड है अगर बाहर जाएगा तो आउटफ्लो ट्रैक जो है वो बल्बस कॉर्डिस जो है वो बनाने वाला है. ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है इट फॉर्म्स द आउटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा ट्रंकस आर्टरियोसिस से बने. साइनस विनोसस एक ऐसा रीजन है जो वीनस ब्लड सप्लाई को रिसीव करता है, और बल्बस कॉर्डिस जो है इट इज गोइंग टू फॉर्म द राइट वेंट्रिकल एंड आउटफ्लो ट्रैक. ठीक है. देन हार्ट बिगिन्स टू कॉन्ट्रैक्ट. जब ये सब रीजन बनेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिदमिकली स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, एंड उससे सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा. सर्कुलेशन इज इंश्योर्ड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्ब्रियो. तो हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन के बाद मायोकार्डियम एंडोकार्डियम बन जाएगा, एंड जो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है इसमें ये 5 रीजन्स होंगे. राइट. ओके, मूविंग ऑन. द थर्ड स्टेप इज द कार्डियक लूपिंग, जो कि आपका 48 to 55 आवर्स पोस्ट फर्टिलेशन हो जाएगा. स्टेज क्या रहेगी? 12 to 16. ठीक है. तो यहाँ पे हार्ट ट्यूब जो है इट इलोंगेट्स एंड इट अंडरगोज अ राइटवर्ड लूपिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. चिक में कैसा होता है, देर इज राइटवर्ड जिसको आप डी लूपिंग भी कहते हैं, और ये लूपिंग होनी इंपॉर्टेंट है सो दैट द हार्ट ट्यूब इस्टेब्लिश द लेफ्ट राइट एसिमेट्री. ठीक है. लेफ्ट और राइट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए. देन द क्रेनियल पोर्शन विच इज़ फ्यूचर वेंट्रिकल, जो फ्यूचर पार्ट वेंट्रिकल बनाने वाला है, इट बेंड्स वेंट्रली, तो वो नीचे की तरफ बेंड होगा, एंड टू द राइट, राइट साइड में बेंड होगा और नीचे की तरफ. ठीक है. अगर मान लीजिए ये राइट है ये लेफ्ट है तो इस तरफ वो जो है वो बेंड आने वाला है. ठीक है. और जो कॉर्डल पार्ट हो, कॉर्डल पार्ट वो होता है जिसने एट्रिया बनाना है. ठीक है. तो बेसिकली आपको उल्टा दिख रहा है, बाद में ये एस शेप में मूव करेगा तो ऊपर को आ जाएगा. तो क्रेनियल पोर्शन जिसने फ्यूचर वेंट्रिकल बनाना है वो राइट साइड को वेंट्रली बेंड होगा. कॉर्डल पोर्शन जिसने फ्यूचर एट्रिया बनाना है इट मूव्स डॉर्सली एंड टू द लेफ्ट. ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. ठीक है. क्रेनियल पोर्शन राइट की तरफ वेंट्रली और कॉर्डल पोर्शन लेफ्ट की तरफ डॉर्सली. ये लूप हो जाएगा तो एस शेप जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगा. अगर मैं आपको इसको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो है ना ये लूपिंग जो है यहाँ से इस तरह से कुछ इस तरह से लूपिंग जो है वो होगी. यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, सॉरी अबाउट द डायग्राम, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो की मॉलिकुलर रेगुलेटर्स क्या हैं इस लूपिंग के? नोडल लेफ्टी 1/2, ये लेफ्ट राइट एसिमेट्री इस्टेब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है. सोनिक हेजहॉग जो है ये हार्ट ट्यूब का इलॉन्गेशन रेगुलेट करेगा, और पिटेक्स 2 ये डायरेक्ट करेगा लूपिंग की डायरेक्शन को. ठीक है. कि लेफ्ट राइट में क्या किस तरह से लूपिंग होनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ठीक है ना. वेंट्रिकल वाला पोर्शन वेंट्रली और राइट की तरफ बेंड होता है, और जो फ्यूचर एट्रिया वाला पोर्शन है वो डॉर्सली और लेफ्ट की तरफ बेंड होता है. एक बार लूपिंग होगी तो नेक्स्ट थिंग है चेम्बर स्पेसिफिकेशन एंड सेप्टेशन. अलग अलग कर देना चेम्बर्स को. तो दिस विल आकर बाय 20 to 28 आवर्स पोस्ट स्टेज है 20 to 28, और 3 to 5th डे में ये हो जाएगा. सो व्हाट हैपन्स, द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू 4 चेम्बर्स नाउ, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये 4 चेम्बर्स बन जाएंगे. अभी क्या होगा, जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है इसके बीच में एक आपको सेपरेशन बनानी है, तो सेप्टा बनेगा, सेप्टेशन होगी. वैसे ही 2 एट्रियम के बीच में भी सेप्टेशन होगी, इजंट इट, और 2 वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टेशन होगी. तो 3 तरह के सेप्टा बनेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा. राइट. ये सेप्टेशन होगी. सो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टेशन में क्या होगा, एंडोकार्डियल कुशन विच इज़ डिराइव फ्रॉम द कार्डियक जेली. हमने पीछे पढ़ा था ना एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, तो कार्डियक जेली से डिराइव्ड एंडोकार्डियल कुशन जो है इट विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टेशन.
ताकि सेपरेट हो जाए एट्रिया वेंट्रिकल से। यहाँ पे नॉच सिग्नलिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट रेगुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन इन कुशन सेल। तो बेसिकली जो आपके कार्डियक जेली के सेल्स है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द कुशन सेल्स विद द हेल्प ऑफ नॉच सिग्नलिंग। देन देयर इज इंटर एट्रियल सेप्टा फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, द सेप्टम प्राइमम ग्रोज फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ द एट्रियम। तो एट्रियम से क्या होगा, देर इज ग्रोथ ऑफ द वॉल एंड वहाँ से बनेगा क्या, सेप्टम प्राइमम। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड द फोरामेन ओवेल विच अलाउज द ब्लड फ्लो बिटवीन द एट्रिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटर एट्रियल सेप्टम किससे बन रहा है, डॉर्सल वॉल जो एट्रियम है वही उसको कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसके साथ साथ देर इज़ वन ओपनिंग कॉल दी फोरामेन ओवेल विच अलाउज द ब्लड फ्लो बिटवीन द एट्रिया। तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट एट्रिया के बीच में ब्लड फ्लो होता रहेगा एम्ब्रियोनिक टाइम में, लेकिन जैसे ही हैचिंग हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। तो जो ब्लड फ्लो होता रहता है वो किसके थ्रू होता है, फोरामेन ओवेल के थ्रू होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्मेशन में मसल एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द सेप्टा विल फ्यूज टू सेपरेट द वेंट्रिकल एंड इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग इज बीएमपी। तो बीएमपी सिग्नलिंग विल गाइड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बेसिकली अब क्या हुआ, बाय दिस स्टेज यू हैव 4 डिस्टिंक्ट चेम्बर्स इन दी हार्ट ऑफ द चिक, बट द एट्रिया जो है लेफ्ट और राइट एट्रिया उसके बीच में कनेक्शन जरूर प्रेजेंट है विच इज फोरामेन ओवेल, राइट। देन लास्ट पार्ट इज द आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन और वैल्व फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमने ट्रंकस आर्टरियोसिस पढ़ा था, तो ट्रंकस आर्टरियोसिस इज फाइनली गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू आउटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ओटिक ट्रंक और पल्मोनरी ट्रंक में डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ पे आउटी पल्मोनरी सेप्टम भी बनेगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट होगी, एक सेप्टम बनेगा एंड इट फॉर्म्स बाय द न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस ने क्या बनाया, आउटिक और पल्मोनरी ट्रंकस बना दिया, और उनके बीच का जो सेप्टम है इट फॉर्म्स फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन सेपरेटिंग द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट इज सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नहीं पता है तो यू कैन कॉमेंट एंड डाउन एंड आई कैन मेक अ स्मॉल वीडियो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज़ द हार्ट वॉल्व फॉर्मेशन। तो हार्ट वॉल्व क्या होते हैं, तो अगर बेसिक हार्ट आपने मैमल का पढ़ा है तो पता ही होगा कि अगर आप लेफ़्ट और एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बात करें, यहाँ पे भी एक वैल्व होता है, वैसे ही राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वैल्व होता है। तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वैल्व्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप लेफ़्ट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, हार्ट से ब्लड बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे भी वैल्व होगा, ठीक है। और राइट से जा रहे हैं तब भी वहाँ वैल्व होगा। तो वैसे ही ट्राइकस्पिड वैल्व जैसे बाइकस्पिड का नाम मिट्रल वैल्व है, पल्मोनरी और आउटिक वैल्व होते हैं। तो ये सारे वैल्व जो हैं ये डेवलप होंगे कब, जब आउटफ्लो ट्रैक बन रहा होगा, एंड दे आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन अगेन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फाइनली हार्ट के वैल्व भी बन गया, आउटफ्लो ट्रैक भी बन गया। अब लास्ट थिंग है मैचुरेशन। मैचुरेशन जो है वो बाय डे 10 to 12 हो जाती है। तो लेटर ऑन डेवलपमेंट में क्या होगा, देर इज ट्रैबिकुलेशन विच इज़ बेसिकली मस्कुलर रिज, द फॉर्मेशन ऑफ द मस्कुलर रिज विच अकर्स इन द वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल ने पंपिंग करनी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मस्कुलर रिजेस वहाँ पे बनेगी जिसको आप ट्रैबिकुलेशन कहते हो। देन देर इज़ कोरोनरी वेस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये हार्ट की खुद की सप्लाई है, क्योंकि हार्ट अपने आप में भी तो मसल है ना, तो उस मसल को भी सप्लाई चाहिए। तो वहाँ पे जो वेसल है उनको कोरोनरी वेसल्स कहते हैं, एंड दे डेवलप अंडर द सिग्नलिंग ऑफ ईजीएफ, दैट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये एंजियोजेनेसिस होती है। तो बेसिकली ये वेसल सप्लाई करेंगी हार्ट को, कोरोनरी वेसल्स जो हैं, ठीक है। एंड द कंडक्शन सिस्टम विल मैच्योर, जिसमें आपके जैसे एवी नोड हो गया, एसए नोड हो गया, ठीक है, ये सब बनना शुरू हो जाएगा ताकि एक सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है वो हार्ट का शुरू हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल डेवलपमेंट। सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज़ कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चिक में जब हार्ट डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो मीजोडर्मल सेल स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ट ट्यूब बनता है, देन उसमें लूपिंग होती है, फिर चेम्बर बनते हैं, एंड फाइनली चेम्बर बनने के बाद क्या है, आउटफ्लो ट्रैक बन जाएंगे। तो उसके बाद जो है देर इज़ मैचुरेशन, है ना, वैल्व फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन। तो ये है हार्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट। I hope this is clear to you. And if you talk about the major signaling again, so we have BMP, जिसमें BMP 2, 4, 5, 7 ये इन्वॉल्व है। तो 2, 4 किस में इन्वॉल्व है, दे आर एसेंशियल फॉर कार्डियक मीजोडर्म इंडक्शन। तो मान लीजिए अगर आप खुद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में यू वांट टू इंड्यूस सम सेल, मीजोडर्म के सेल को आपने कार्डियक मीजोडर्म बनाना है, तो यू कैन जस्ट गिव दीज फैक्टर्स BMP 2 और 4 देंगे,
ठीक है। सेकेंडली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो इंडक्शन हो ही नहीं सकती। देन BMP 5 and 6 आर इन्वॉल्व इन द वैल्व एंड सेप्टम फॉर्मेशन, तो जहाँ पे भी सेप्टा बनना है, वैल्व बनना है, वहाँ पे BMP 5 और 7 चाहिए। सो अगर आप BMP एंटागोनिस्ट क्या होगा, जो BMP के खिलाफ काम कर रहा है, बेसिकली BMP को बंद कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है नॉगिन, कॉर्डिन एंड ग्रेमलिन। ये 3 तरह के एंटागोनिस्ट अगर आप दे दें तो दे विल प्रिवेंट प्री मेच्योर डिफरेंशिएशन ऑफ हार्ट प्रिकर्सर सेल, क्योंकि आपको BMP चाहिए ना हार्ट बनाने के लिए। बेसिकली आप ये सोच लीजिए, तो जो हार्ट के प्रिकर्सर सेल हैं उनकी प्री मेच्योर डिफरेंशिएशन ना हो जाए, ठीक है। प्री मेच्योर मतलब टाइम से पहले वो डिफरेंशिएट ना हो जाए, इसीलिए BMP एंटागोनिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं कि टाइम पे BMP एक्टिवेट हो, ठीक है। तो BMP सिग्नलिंग का बेसिकली रोल क्या है, दे विल प्रमोट डिफरेंशिएशन ऑफ द कार्डियक प्रोजेनिटर सेल फ्रॉम द मीजोडर्म सेल। तो जब तक टाइम ना आए तब तक BMP को एक्टिवेट नहीं करना, और वो किसके कंट्रोल में है, BMP एंटागोनिस्ट के। सेकेंड सिग्नलिंग इन्वॉल्व इज FGF, तो FGF में FGF 8, 10 और 2, 4 हैं। 8 और 10 जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट इन हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन, एंड 2 and 4 रेगुलेट एंजियोजेनेसिस एंड कॉर्नरी वेसल फॉर्मेशन। तो हार्ट को खुद की जो ब्लड सप्लाई है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ FGF 2 and 4। फंक्शन देखोगे तो FGF जो है दे स्टिमुलेट कार्डियक मीजोडर्म एक्सपेंशन एंड वेस्कुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। देन देर इज विंट सिग्नलिंग, जिसमें 2 तरह के पाथवे होते हैं, कैनोनिकल है, एक नॉन कैनोनिकल है। कैनोनिकल पाथवे बेसिकली बीटा कैटेनिन इन्वॉल्व होता है उसमें, और नॉन कैनोनिकल में नहीं होता है इन्वॉल्व, ठीक है। कैनोनिकल पाथ में विंड 3 और 8 है, दे इनहिबिट अर्ली कार्डियक डिफरेंशिएशन। अगेन वही बात है, टाइम से पहले जो है वो उसको डिफरेंशिएट नहीं होने देंगे, जब टाइम आएगा तभी कार्डियक सेल जो है डिफरेंशिएट होकर हार्ट सेल बनाए, ठीक है, मतलब वो प्रोजेनिटर सेल जो है वो मेच्योर हो जाए। देन नॉन कैनोनिकल विंड जो है उसमें विंड 11 और विंड 5 हैं, दे प्रमोट कार्डियक प्रोजेनिटर स्पेसिफिकेशन एंड हार्ट ट्यूब इलॉन्गेशन एज वेल। अगर फंक्शनिंग देखेंगे तो इसके 2 रोल हैं, सबसे पहले इनहिबिट करेगा अर्ली हार्ट फॉर्मेशन कि टाइम से पहले ना बन जाए, एंड सेकेंडली प्रमोट कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस क्योंकि ट्यूब इलॉन्गेशन और मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। देन देर इज नोडल लेफ्ट राइट एसिमेट्री सिग्नलिंग, तो नोडल में TGF बीटा फैमिली का मेंबर है नोडल, ये लूपिंग में इन्वॉल्व होता है। तो लेफ्ट राइट एसिमेट्री लूपिंग जो है उसमें नोडल इन्वॉल्व है। लेफ्टी 1 और 2 ये जो है दे इनहिबिट नोडल ऑन द राइट साइड। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी लेफ्टी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे नोडल सिग्नलिंग को इनहिबिट किया जाता है ताकि एसिमेट्री जो है वो बनी रहे, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो है अलग अलग रहें। फिर आपका हेजहॉग सिग्नलिंग आती है। हेजहॉग सिग्नलिंग की बात करें तो इसमें 2 तरह के हेजहॉग हैं, देयर इज सोनिक हेजहॉग, इंडियन हेजहॉग। सोनिक हेजहॉग रेगुलेट्स द कार्डियक आउटफ्लो ट्रैक डेवलपमेंट, एंड इन जो आपका इंडियन हेजहॉग है ये अगेन कोरोनरी वेसल फॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे विंट को देखा था, ठीक है, ये जो है स्पेसिफिकेशन करवा रहा है FGF को देखा था जो आपका किसके साथ इन्वॉल्व है, कॉर्नरी वेसल फॉर्मेशन के साथ, वैसे ही इंडियन हेजहॉग वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हार्ट चैम्बर ग्रोथ और वेस्कुलराइजेशन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द सोनिक हेजहॉग। एंड लास्टली देर आर 2 फैक्टर्स, नॉच एंड रेटिनोइक एसिड। तो नॉच की अगर बात करेंगे इसमें नॉच 1 and 2 है, दे रेगुलेट द एंडोकार्डियल टू मेसेनकाइम ट्रांसडिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंडोकार्डियल से मेसेनकाइम ट्रांसडिशन होगा तभी हार्ट वेल्व बनेगा, मैंने आपको पीछे भी बताया हार्ट वेल्व बनने के लिए मेसेनकाइमल सेल्स चाहिए, तो वो ट्रांजिशन के लिए नॉच सिग्नलिंग इज इन्वॉल्व। देन देर इज जैक्ड एंड डेल्टा लाइगेंड, ये भी नॉच सिग्नलिंग के लाइगेंड है, दे कंट्रोल द चैम्बर पैटर्निंग एंड ट्रेबिकुलेशन। तो जो वेंट्रिकल्स में मसल्स हैं ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए वो सब इस सिग्नलिंग के अंडर कंट्रोल में। तो प्रॉपर हार्ट चेम्बर का सेपरेशन और वेल्व मॉर्फोजेनेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉच सिग्नलिंग। एंड लास्टली रेटिनोइक एसिड सिग्नलिंग। तो रेटिनोइक एसिड जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम विटामिन A एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट फील्ड स्पेसिफिकेशन एंड इट रेगुलेट द सेकंड हार्ट फील्ड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो एट्रियार आउटफ्लो ट्रैक जब बनते होते हैं तो उस टाइम पे रेटिनोइक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्ट का साइज़ क्या रहेगा, चेम्बर किस तरह से बनेंगे, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ रेटिनोइक एसिड है। सो दिस कंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट फील्ड से ही अगेन आप स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, फिर आपने हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन की है, तो ये ट्यूब जो है इसमें अलग अलग रीजन्स हैं और बाद में आपका चेम्बर बन गए, वैल्व बन गए, मैच्योर हुआ एंड देयर इज़ योर हार्ट, राइट। अब दोनों चीज़ें जो हमने यहाँ पे आज करी हैं कवर, आई और हार्ट, इनमें आप चीज़ एक ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंटल सिग्नलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दिस स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स क्या हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ स्पेसिफिक चिक के लिए है तो वो उसको ध्यान में रखिए, एंड द सिग्नलिंग क्यूज इन्वॉल्व एंड यू आर good to go for your exam. So this is it for today. Thank you so much for joining me with this lecture.
अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है एंड यू अंडरस्टैंड समथिंग, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन इफ़ यू हैव सम क्वेरी इन योर माइंड और व्हाट्सोएवर। अगर आपको लगता है कोई और स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो दैट यू कैन ऑल्सो राइट, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द लेक्चर, एंड ऑल्सो गिव योर सजेशन इफ़ you need something else in the lecture, and subscribe to the channel and stay connected from upcoming lectures. I will see you all in the next video. Thank you so much.